Hello dear students, in previous lecture we have discussed about a little bit about Coulomb's law. So right now I am going to continue that particular topic, Coulomb's law. According to this particular law, if there are two charged particles, suppose Q1 and Q2 are placed at a central distance r, then there will be a force of interaction between Q1 and Q2. Force of interaction that is known as electrostatic force, and the magnitude of interaction force is always proportional to product of their charges, and inversely proportional to the square of central distance between them. Okay, see, the product of interaction force is always proportional to product of both charges and inversely proportional to the square of central distance between them. Okay, now we have to remove the proportionality constant, so we will use a proportionality sign, which is K, known as a proportionality constant for Coulomb's law. The value of K, which I told you earlier, that 1/4 pi epsilon naught, and whereas epsilon naught is relative permittivity of free space or permittivity of free space, the value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised to power minus 12. Okay, if I am going to put the value of epsilon naught and I am going to solve this one particular, then we will get the value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to power 9. And I told you that if I am going to calculate the dimension of K and unit, that we will get Newton meter square per Coulomb square. Okay, so we will calculate dimension accordingly, that you have studied in 11th. Okay, so right now I am going to discuss about the force which is experienced by two charged particles. Okay, if we are going to discuss about Coulomb's law, then we do require at least two charged particles. Similarly, that you have discussed in 11th standard in gravitation, if we are going to discuss about gravitation, that in that topic we do require at least two mass particles. So similar like that, here we do require at least two charged particles for interaction. Okay, right now I am going to discuss about the direction of force, and also we do like to continue this topic or vector form of Coulomb's law, which is named as like this in your NCERT book. Okay, so vector form of Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law. Suppose two charged particles Q1 and Q2 are placed like this. The position vector of Q1 is R1 vector and the position vector of Q2 is R2 vector. Okay, the position vector of Q1 is R1 vector, the position vector of Q2 is R2 vector with respect to origin, and the position vector of Q1 to Q2 is R12 vector, or Q2 to Q1, that is R21 vector. सी, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है बेटा 11th में, तो आपको पढ़ाया जाएगा कि पोजीशन वेक्टर क्या है, कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का या किसी पर्टिकुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. ओके, सो Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R12 है, और Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो R21 वेक्टर है. और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि R12 वेक्टर is always minus R21 vector. Okay, so here according to vector form of Coulomb's law, there are two charged particles Q1 and Q2 placed at a certain point. The position vector of Q1 is R1 and the position vector of Q2 is R2. So according to Coulomb's law, F of E, electrostatic force, is always proportional to the product of their charges Q1 Q2. K, which is proportionality constant, and here R is the central distance between charged particles. If I am going to consider the central distance Q1 to Q2, which is R12 vector, ओके, सो R12 वेक्टर का मोड था, और आपको क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके सेंट्रल डिस्टेंस के, तो K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मोड का स्क्वायर. बट बेटा ये तो अभी तक आप बोलोगे कि सर फिजिकल क्वांटिटी, अगर आपने फोर्स बोला वेक्टर है तो ये कैसा है, अभी तक स्केलर है, तो मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम बेटा, एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सर आपका कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज करके ये वेक्टर क्वांटिटी है R, तो उसका यूनिट वेक्टर जो होता है बेटा उसको हम R कैप से डिनोट करते हैं, और R कैप का मतलब होता है बेटा R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर. R vector upon mode of R vector. Here we are considering R like as R12. Okay.
सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अगर मैं बात करता हूं बेटा R12 को अगर मैं लिखना चाहूं कि सर आपने R12 जो लिखा है R12 वेक्टर है, बट R12 है क्या, तो R12 के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहां से 1 का 2 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, इट मींस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और R21 की बात करता हूं बेटा यहां से, तो R21 वेक्टर होता है बेटा 2 के रेस्पेक्ट में 1 का पोजीशन वेक्टर, इट मींस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो अगर मैंने आपसे बोला कि अगर मैं नेगेटिव साइन ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सेम हो जाएंगे। इट मींस अगर एक की डायरेक्शन यहां से Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 जो है वो राइट साइड में है, तो Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 क्या है, लेफ्ट साइड में। इट मींस अगर आप अपन वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो डायरेक्शन को अपने को रिप्रेजेंट करना होता है, और वो आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दिया आपको कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अच्छा अगर मैं यहाँ R12 वेक्टर और R12 वेक्टर का वैल्यू पुट करता हूं तो वी विल गेट f of e k q1 q2 अपॉन मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर एंड R12 वेक्टर, इट मींस R कैप और R12 कैप का बात करता हूं बेटा, तो यहां से हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, सी square and in denominator term there are two terms, first one is with the square and second one is multiply. So we will conclude that particular two terms, then we will get f of E, the electrostatic force of interaction between two charged particle Q1 and Q2, k Q1 Q2 upon R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड का क्यूब बन जाएगा बेटा। डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर है और एक R कैप की वजह से एक आया टर्म, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा बेटा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है ना। कई बार जनरली पूछ लिया जाता है कि आपको कूलम्ब्स लॉ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कूलम्ब्स लॉ और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। ओके, सो अगर आपसे जब भी कूलम्ब्स लॉ के बारे में पूछा जाए तो आपको कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट आपको मैंने बताया, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, इफ देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 and Q2 are placed at a central distance r, then force of interaction between Q1 and Q2 always proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of central distance between them. Okay, तो आपको ये सब कुछ समझाना पड़ेगा, उसमें आपको k को बताना पड़ेगा k क्या है, k का वैल्यू कैसे आता है, फिर आपको उसका वेक्टर फॉर्म के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूं k की, तो अगर बेटा आपने 11th में पढ़ा है तो आपको बोला गया है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो ग्रेविटेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडिया, कि अगर आप दो मास पार्टिकल्स को कहीं भी रखना चाह रहे हो यूनिवर्स में तो उसका एक कांस्टेंट आता था g, जो होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इट मींस द वैल्यू ऑफ कैपिटल G डज नॉट डिपेंड वेयर वी आर गोइंग टू पुट both mass particles, but here if we are going to change the location and media of charged particles, then force of interaction will also changes. So Coulomb's law in a media, Coulomb's law in a media. Okay, suppose there are two charged particles Q1 and Q2 are placed in vacuum. First case first, in vacuum. Okay, the central distance between Q1 and Q2 is r. Then force of interaction between them, or if I am going to write down the force of interaction is like k Q1 Q2 upon r square. Simply अगर मैं इसी सिस्टम को एक मीडियम में ले जाऊं, किस में ले जाऊं, केस सेकंड की बात करता हूं, तो अगर मैंने इसी सिस्टम को मैंने एक मीडियम में रखा गया कि इन मीडियम, ओके, अगर मैंने मीडियम में रखा तो ये सपोज करके ये मेरा एक मीडियम है जिसमें मैंने Q1 और Q2 को मैंने यहां रखा है कि ये मेरा बेटा Q1 है और ये मेरा Q2 है। सेंट्रल डिस्टेंस अगर मैंने सेम रखा r, तो मेरा जो यहाँ पे नया फोर्स जो होगा मीडियम में, कि f ऑफ e किस में बेटा, मीडियम में जो f ऑफ e होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर k तो सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, तो बेटा k जो होता है वो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर सेम रहेगा, बट k जो होगा वो k डैश हो जाएगा। अच्छा k क्या था, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बात करता हूँ, तो यहाँ अगर मैं डिस्कस करते हैं तो k है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट अगर आपको मैंने बताया कि ये बेटा क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, permittivity of free space. Okay, permittivity of free space, or we can say vacuum also, or air also. Okay, so the epsilon naught is a permittivity of free space, whereas we are going to put our charged particles in a media that
the permittivity of that particular media, suppose epsilon r. Epsilon r is defined as the relative permittivity of any media in which we are going to place our charged particles. So the epsilon r is defined as the relative permittivity. It means permittivity of media upon permittivity of free space. Epsilon r is defined as permittivity of relative permittivity. Epsilon r is defined as relative permittivity of any media, and it is defined as the ratio of permittivity of media to permittivity of free space. Okay, so अगर बात करता हूं कि बेटा आपने जो सर epsilon r रखा, तो अगर मैं यहां से मीडियम की बात करता हूं तो मेरा फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, मीडियम में रखने पे epsilon r k का वैल्यू अगर 1/4 पे आता है, तो यहां से आप बोलोगे कि f of e, force of interaction between two charged particles in a media will q1 q2 अपॉन, अगर मैं k डैश का वैल्यू रखता हूं तो k डैश क्या बोलोगे कि सर ये एप्सिलॉन r हो जाएगा, तो वो एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r अपॉन r स्क्वायर. ओके, देखो बेटा k का वैल्यू जो था यहां से आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं मीडियम के एप्सिलॉन r रख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं यहां से वैल्यू पुट करता हूं तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन m बचेगा, तो मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन r स्क्वायर एज इट इज. ओके, तो ये क्या हुआ बेटा, अगर मैं किसी दो चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडिया में रखता हूं तो इंटरेक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सपोज करके उसके रिलेटिव परमिटिविटी, वी नो दैट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडिया इंक्रीजेस व्हेनेवर वी आर गोइंग टू पुट the charged particles from vacuum to any media. So the force of interaction will reduces. Force of interaction will reduces, or we can say force of interaction will changes if we are going to put out our charged particles from vacuum to any other media. Okay, so this is the vector. This is the basic concept of if we are going to put our charged particles in any media. Okay, so now right now I think you had got it. Coulomb's law. So we are going to start various type of problems on Coulomb's law. See, Coulomb's law क्या है बेटा, आपका फोर्स है. अगर फोर्स की बात करता हूं तो डायनेमिक्स की बात करता हूं, 11th आता है, और 11th में आपने डिफरेंट टाइप के फोर्स पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप के आपने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, एसएचएम क्या होता है, स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, है ना. तो वो सब टाइप के प्रॉब्लम्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो आपको ये एग्जांपल नहीं बेटा, ये डिफरेंट केसेस है, बट मैं उनको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा. सपोज करके हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है Q और Q, एक सेंट्रल डिस्टेंस R पे रखें, ठीक है. अब मेरे को क्या करना बेटा, एक थर्ड चार्ज पार्टिकल है सपोज Q, कैपिटल Q, Q3 जो है बेटा वो क्या है, कैपिटल Q है. मैं पोलरिटी के साथ बात कर रहा हूं, मैंने कोई साइन नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है. Q3 अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं और मैं आपसे पूछता हूं वेयर वी शुड द थर्ड चार्ज पार्टिकल Q so that it will be in equilibrium. You know equilibrium, it means net force and net torque should be zero on that particular point. Okay, तो मतलब ये हो रहा है कि मेरा जो ये स्पेशल एग्जांपल है उसका मतलब ये है कि मेरे दो चार्ज पार्टिकल्स है Q और Q, अगर R डिस्टेंस पे रखे, ये Q1 Q2 भी हो सकता है, वो लेटर ऑन आप समझ जाओगे, है ना. तो मेरे को थर्ड चार्ज, वेयर वी शुड प्लेस थर्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. अच्छा, आपको चेक करना है कि सर अगर मैं इस थर्ड चार्ज पार्टिकल Q को कहां रखूं कि ये क्या हो, इक्विलिब्रियम हो. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा बेटा आप पे, कि इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. अच्छा सर, आप बोलोगे कि सर इसको तो हम डिफरेंट लोकेशंस पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी तो कोई आइडिया नहीं कि वेयर वी शुड पुट थर्ड चार्ज पार्टिकल सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. लेट मी टेल यू अबाउट डिफरेंट लोकेशंस. सपोज करके मैंने सबसे पहले यहां रखा, सपोज करके मैंने सबसे पहले इस Q3 को यहां पे पुट किया, Q3 सपोज x डिस्टेंस पे, Q से जो है मैंने सपोज x डिस्टेंस पे मैंने यहां रखा. अच्छा, ये Q3 पॉजिटिव चार्ज है, Q है, Q3 का मैग्नीट्यूड कितना Q है. अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव क्या करेंगे बेटा, सेम नेचर ऑफ चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और ये वाला भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. मतलब ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो है वो दोनों रिपेल करेंगे. इट मींस नेट फोर्स क्या आ गया, F नेट जो होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा. मतलब आपका जो पार्टिकल है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है. सिमिलरली टू राइट साइड, सपोज करके मैंने यहां एक्स पोजीशन पे रखा Q चार्ज को, तो इस पे ये Q भी रिपेल करेगा और वो वाला Q भी क्या करेगा, रिपेल करेगा. मतलब यहां भी F नेट जो है वो क्या नहीं है, नॉन जीरो है. इट मींस ये भी आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकता. अच्छा, मैं अगर आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सपोज करके मैंने यहां किसी एक जनरल लोकेशन पे Q को रखा, तो ये वाला Q क्या करेगा बेटा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन से, और ये वाला Q क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन से. तो इस पे एक नेट फोर्स आएगा, वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा,
पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ऐसा कुछ नेट फोर्स आएगा, तो मतलब यहाँ भी एफ नेट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। अच्छा सर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये वाला उसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, और एफ नेट यहाँ भी क्या आएगा बेटा, नॉन जीरो आएगा। मतलब आप बोलोगे कि सर हमने आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग हमने डिफरेंट लोकेशंस पे पुट किया Q3 को, और हम वी गॉट दैट देयर कांट बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, सो लेट्स चेक द फाइनल possibility of equilibrium for third charge particle. Final possibility of equilibrium for third charge particle. See, if the central distance is r. Okay. अब थर्ड पोजीशन ये बच रहा है कि बेटा अगर मैं इसको लाइन जॉइनिंग पे कहीं रखता हूं, मान लो सपोज आई एम गोइंग टू पुट द थर्ड चार्ज पार्टिकल Q at a distance x from this charge particle. Okay, so the distance of Q from this one will be r minus x. R minus x. Okay. See, अब सोच बेटा ये वाला जो Q है, इस Q की वजह से इस कैपिटल स्मॉल Q कैपिटल Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला Q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। मतलब सर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q पे, इस Q की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस Q की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स है। सर कुछ ऐसा हो जाए कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सिमिलर हो जाए, सेम हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो द बोथ फोर्सेस विल कैंसल आउट ईच अदर एंड वी विल गेट F0। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि सर F0 हो सकता है, अच्छा F0 हो सकता है, कहां हो सकता है, तो आप बोलोगे सर यहां कहीं हो सकता है। अगर सपोज करके मैं इसको Q1 नाम देता हूं, इसको Q2 नाम देता हूं, ठीक है, और हम कैलकुलेट करते हैं कि सर कहां जीरो हो सकता है। अगर मैंने x बोला तो अगर इस वाले को मैं अगर नाम देता हूं Q1 की वजह से Q पे फोर्स लग रहा है, उसको अगर मैं F1 नाम देता हूं और इधर वाले को F2 नोटेशन कर रहा है अपन लोग, तो देखो F1 का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो बेटा आपको बताया सिंपल, द फोर्स ऑन कैपिटल Q एक्सर्टेड बाय Q1 ओनली, दैट इज K Q1 Q बाय x स्क्वायर, द सेंट्रल डिस्टेंस। अच्छा बात करते हैं Q F2, इट मींस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन कैपिटल Q बाय Q2 इज F2, सो मैग्नीट्यूड ऑफ F2 will be like K Q2 capital Q upon R minus x का होल स्क्वायर, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इट मींस क्या होना चाहिए कि F1 प्लस F2 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि सर हमें पता है, देखो बेटा डायरेक्शन अपोजिट है तो जीरो हो जाएंगे, या फिर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो भी ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूं तो वो ऑलरेडी ऐसा है, तो मतलब ये दोनों जीरो हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि आपका F1 वेक्टर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, F2 वेक्टर के माइनस के, और माइनस मतलब डायरेक्शन ऑलरेडी बराबर है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, अगर मैग्नीट्यूड को मैं इक्वेट करते हैं तो मैंने यहां रखा K Q1 Q by x स्क्वायर should be equals to K Q2 Q by R minus x का होल स्क्वायर, R minus x का होल स्क्वायर। अच्छा आप बोलोगे सर K से K तो कैंसिल आउट हो गया, Q से Q भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब देखो बेटा यहां से आपके पास क्या बचेगा, Q1 Q2 R और X, there are four variables, जिनमें से आप the non variables are Q1 Q2 and R। देखो Q1 आपको दिया होगा मैग्नीट्यूड चार्ज का, Q2 आपको दिया होगा मैग्नीट्यूड चार्ज का, और आपको R दिया होगा, तो वेरिएबल कौन है आपके पास, X वेरिएबल है, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो we will get X, so we will get Q1 by X square equals to Q2 by R minus X का होल स्क्वायर। ठीक है, it's too easy to calculate X from here। ओके सो अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल दिए हैं Q1 और Q2, और हमें अगर किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल को ऐसे पोजीशन पे रखना है जो वहां स्टेबल हो, क्या हो, स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम हो इट मींस क्या हो जाएगा आपका नेट फोर्स, equilibrium it means net force and net torque both should be zero, but here we will discuss about force only. So the net force on that particular location on Q3 should be zero, it means the force exerted by both charges should be equal and opposite direction, should be in equal and in opposite direction। Okay, so by this one particular concept we will consider like this। Okay, see अगर मैं बात करूं आपका Q1 और Q2 कैसा है बेटा, सेम पोलरिटी का, Q1 Q2 क्या है, सेम पोलरिटी का। अगर किसी बच्चे के माइंड में ये ख्याल है कि सर ये सेम ना हो के डिफरेंट होता, सेम ना हो के डिफरेंट होता तो मैं क्या करता, तो बेटा आप ये नोट कर ले कि इफ बोथ चार्जेस हैविंग सेम नेचर, इफ ये स्पेशल केस है बेटा जो पूछा जाता है, इफ बोथ चार्जेस Q1 and Q2 having same nature and we have to put the third charge particle whatsoever its nature, क्योंकि अगर Q3 का जो नेचर होगा बेटा वो दोनों साइड सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मींस दिस वन पर्टिकुलर
Dear students, sorry for interruption due to technical problem. We were discussing if both charges Q1 and Q2 are placed at a central distance r, suppose, and where we should place the third charge particle Q3 so that it will be in equilibrium. If both charges Q1 and Q2 having same nature, if Q1 and Q2 having same nature, it means both Q1, Q2 may be positive or may be negative. If Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं तो हमें थर्ड चार्ज पार्टिकल Q3 जो है उसका नेचर डजंट मैटर whatsoever its nature. If both charges Q1 and Q2 having same nature, then where we should place third charge particle whatsoever its nature, so that it will be in equilibrium. So we should place the third charge particle on the line joining between them. Suppose I am going to put Q3 over here at a distance x from Q1, and the remaining distance between Q2 to Q3 will be r minus x, है ना. So अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिसेंटली लॉजिक बताया आपको, तो we will get Q1 upon x square equals to Q2 upon r minus x का होल स्क्वायर, है ना. अब यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको सर Q1, Q2 और आपके पास r जो है ये तीनों चीज नोन है, तो आपके पास अननोन क्या है? अननोन सिर्फ आपके पास x है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से x. अगर मैं बात करता हूँ इफ Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q हो जाए, कि अगर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां से मैंने अगर पुट किया तो ये बेटा Q हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये भी Q हो जाएगा अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना. Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा. रेसिप्रोकल करता हूं तो मेरे पास आता है बेटा कि रेसिप्रोकल करता हूं तो यहां से आता है आपका एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट करता हूं तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा x इक्वल्स टू r माइनस एक्स. मैं x को ट्रांसफर करता हूं तो 2x क्या बन जाएगा r, और x क्या बन जाएगा बेटा r by 2. इसका मतलब क्या हो गया कि if both charges having same magnitude and same nature, then the midpoint of line joining between them will be इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर Q3. इसका मतलब क्या हो गया कि आपके Q1 Q2 सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के हैं, तो मैं एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे रखूंगा, तो ये क्या होगा इसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा. अगर सर ये तो आपका फर्स्ट केस था कि दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं, इफ बोथ चार्जेस हैविंग सेम नेचर, देन वी हैव टू प्लेस द थर्ड चार्ज पार्टिकल व्हाटएवर इट्स नेचर एट द बिटवीन द लाइन जॉइनिंग, ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम. ओके, अब आप जो है वेरिएबल कौन है आपका, यहां से x वेरिएबल है तो आप x कैलकुलेट कर लोगे, है ना. अच्छा सर, अब डिफरेंट केस क्या हो गया कि सर अब सपोज करो कि हमारे चार्ज पार्टिकल्स है उनका नेचर जो हो डिफरेंट हो, कि आपका एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, है ना. तो आपका केस सेकंड हो जाएगा बेटा यहाँ से इफ बोथ चार्ज पार्टिकल्स हैविंग अपोजिट नेचर. इफ बोथ चार्ज पार्टिकल्स हैविंग अपोजिट नेचर, मान लो कि मेरा Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है. Q2 क्या बेटा आपका नेगेटिव है. ये मान लो इनका जो लाइन जॉइनिंग है, इनके बीच का सेंट्रल डिस्टेंस सपोज करके r है. Now we have to place another third charge particle whatsoever its nature, suppose Q. मैंने क्या करना है, कैपिटल Q3 जो है बेटा वो Q है, उसको मैंने पुट करना है कहाँ, ऐसी लोकेशन पे प्लेस करना है जहां ये क्या हो इक्विलिब्रियम में हो. तो सबसे पहला तो आपको वही लॉजिक जाएगा कि सर ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम कहीं पुट करके देखते हैं. सपोज मैंने यहाँ Q को पुट किया, है ना. Q को पुट किया तो ये Q1 इसको क्या करेगा, इस Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये Q2 क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे अट्रैक्शन हो जाएगा. अगर मान लो कि Q नेगेटिव होता, Q क्या होता बेटा, इफ सपोज Q is having negative polarity, then the Q1 will attract and Q2 will repel. मतलब ये वाला पोजीशन तो इस केस में पॉसिबल नहीं है. अच्छा, ये वाला पोजीशन पॉसिबल नहीं है तो हम थोड़ा और पोजीशंस चेक कर लेते हैं, डिफरेंट लोकेशंस चेक कर लेते हैं. इफ सपोज आई एम गोइंग टू पुट दिस पर्टिकुलर Q over here, Q charge. Okay, so Q1 will repel because Q is, if suppose Q is having positive polarity, then Q1 also positive. So I told you earlier that if both charges having same polarity, then they will repel each other. So Q1 repel Q and Q2 attracts Q. ओके, क्योंकि ये नेगेटिव पोलरिटी का है, ये पॉजिटिव है, तो अपोजिट पोलरिटी में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. तो ये क्या होगा, इस पे क्या होगा, एक पैरेललोग्राम लो बनाएंगे अगर हम, तो थोड़ा सा देखेंगे तो इस पे एक नेट फोर्स आएगा, और नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है. सिमिलरली अगर मैं इसको अपर साइड में कहीं रखता हूं तो वो भी जीरो नहीं होगा. तो थोड़े से दो केस और बचे हैं. अगर मान लो कि मैं यहाँ इसको पुट करता हूं,
सपोज कर ले कि मैंने यहां से Q से अब डिस्टेंस पे इस Q को रखा। अच्छा, इस Q को रखा तो ये Q1 क्या करेगा बेटा, तो इसको रिपेल करेगा ना। तो मैं इसको बोलता हूं कि F(1) बोल देता हूं कि आपका जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, रिपल्सन का है Q पे Q1 की वजह से। और Q2 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब F2 ये हो गया। सर आप ये पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे आउटसाइड ऑन द लाइन जॉइनिंग आउटसाइड में चार्ज रखता हूं तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब आपका F1 और F2 बराबर हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और मैग्नीट्यूड ऑफ F2 जो है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये क्या हो सकता है, मेरा इक्विलिब्रियम हो सकता है। सर एक बार हम इधर भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। सपोज करके इधर मैंने एक्स डिस्टेंस पे Q को रखा है ना, तो यहां से Q2 क्या करेगा, इस Q को अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहां से F2 आया, कौन आया, F2 आया। अच्छा, ये Q2 जो था, सॉरी ये F2 इधर आया, Q2 जो था वो क्या करेगा, इस Q को अट्रैक्ट करेगा, जबकि Q1 क्या करेगा, Q को रिपेल करेगा तो F1 फोर्स आएगा, है ना। अब बात करते हैं सर, यहां भी पॉसिबिलिटी ये हो रही है कि इक्विलिब्रियम हो सकता है, कब हो सकता है, जब F2 का मैग्नीट्यूड और F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है। सर दोनों पॉसिबल है, बट विच वन वी हैव टू कंसीडर। सी, अगर दो पॉसिबिलिटी है और हमें चेक करना है कि कौन सा पॉसिबल है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करके मैं इसको Q ले लेता हूं। सपोज करके मैंने लेट Q1 इक्वल्स टू Q, ओके, एंड Q2 इक्वल्स टू -2Q। ओके, मैंने थोड़ा सा मैग्नीट्यूड लेके आपको क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर Q1 और Q2 को जब मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर Q1 Q2 को मैग्नीट्यूड नहीं है तो मैं आपको बोल सकता हूं ये वाला पॉसिबिलिटी भी हो सकता है इक्विलिब्रियम, और ये वाला पोजीशन भी पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम के लिए। ओके, अगर मैंने ये दोनों अगर पोजीशन लिया और मेरा Q3 जो है वो कोई भी नेचर हो, मैंने Q3 ही रखा सपोज इसको, तो मैं चेक करता हूं ये दोनों पोजीशन के लिए। तो Q3 अगर मैं यहां से वैल्यू पुट करता हूं तो F1 जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ये Q जो है तो F1 हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा KQ, F1 का वैल्यू रखा हूं बेटा KQ, Q1, और Q1 क्या है, Q है, अपॉन ये बेटा आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x²। अच्छा, F2 का वैल्यू रखता हूं तो आप बोलोगे सर KQ, है ना, और F2 का वैल्यू क्या है, -2Q है, बट माइनस तो मैं पोलरिटी के साथ कंसीडर कर चुका हूं, डायरेक्शन के साथ, तो मैं वैल्यू रखता हूं तो वहां से क्या आ जाएगा 2Q, ठीक है, अपॉन अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये r डिस्टेंस था और ये x डिस्टेंस है, तो r प्लस x डिस्टेंस हो गया, तो r प्लस x का होल स्क्वायर। अच्छा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मींस q से q कैंसिल आउट हो गया, इट मींस द पोजीशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। ओके, so by solving this q upon x equals to 2q upon r plus x। अच्छा सर, यहां से भी अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो हम थोड़ा इधर इस वाले में पुट करते हैं वैल्यू, तो यहां से मेरा जो F2 आएगा बेटा, ये आ जाएगा K2Q F2 का वैल्यू, और ये Q अपॉन K2Q अपॉन x² should be equals to KQ अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर। बेटा ये क्या है, देखो यहां अगर मैंने Q को पुट किया तो Q को ये Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वेयर Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Q एंड -2Q इज K2QQ अपॉन x²। सी बेटा, आपको मैंने दो चीज बताई है कि आप आइदर यू कैन पुट द Q1 Q2 बाय वैल्यू और यू कैन कंसीडर द डायरेक्शन बाय साइन इटसेल्फ, है ना। तो साइन को देखते हुए अगर आप फोर्स की डायरेक्शन कंसीडर करोगे तो इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अगर मैं यहां से बात करता हूं K से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपका जो बनेगा वो बनेगा बेटा 2Q अपॉन x² इक्वल्स टू Q अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही बेटा, दोनों चीज क्या पॉसिबल है क्या, मैथमेटिकली बोथ एक्सप्रेशंस आर करेक्ट और रॉन्ग, व्हिच वन इज पॉसिबल और नॉट। सी लेट मी टेल यू दिस वन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सी Q से Q भी कैंसिल आउट होता है, तो अगर मैं इसी को आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये आता है बेटा 2 अपॉन x² शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर। इज दैट पॉसिबल मैथमेटिकली और नॉट। सी बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे सर इसका एक तो डिनोमिनेटर बड़ा, सर इसका एक तो न्यूमरेटर बड़ा है इसके कंपेयर में, और एक इसका डिनोमिनेटर छोटा है,
न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, आरएचएस साइड के कंपेयर में, है ना। देखो ये r प्लस एक्स हो गया, मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं, मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं तो मेरे पास आता है 2 इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना, कि r का वैल्यू कुछ भी ना हो, अगर r 0 भी हो तो भी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2x स्क्वायर होता है और ये x स्क्वायर होता है, तो ये विच इज नॉट पॉसिबल। क्या है बेटा? It seems that it may be possible but it does not possible. Why? Mathematically अगर आप जानते हो कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, और आरएचएस राइट हैंड साइड का, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये कभी भी इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वाला पोजीशन हमें लग रहा था कि पॉसिबल है बट पॉसिबल नहीं है। तो अब हम किस पोजीशन पे जाएंगे? जो पॉसिबल है, और जो पॉसिबल है मतलब ये वाला पोजीशन है ना। तो ये वाला पोजीशन पॉसिबल है तो हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो पॉसिबल कौन सा साइड हुआ? तो आप बोलोगे कि सर -2q वाला पॉसिबल नहीं है, q वाला पॉसिबल है। तो हम इसको कैसे, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए स्टेटमेंट के लिए मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाता हूं। स्टेटमेंट जो है बेटा आप लिखो, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स q1 एंड q2, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स q1 एंड q2, see if two charge particles q1 and q2 having opposite nature are placed at a central distance r, suppose, then we have to place another third charge particle q3 whatsoever its nature, it doesn't depend on that, then we have to place third charge particle q3 on the line joining outside small charge, on the line joining outside small charge in magnitude only। देखो आपको मैंने बताया कि ये वाला पॉसिबल हो सकता था, ये वाला पॉसिबल हो सकता था, तो मैंने यहाँ से x डिस्टेंस रखा था, तो आप बोल रहे थे सर q है, तो अगर यहाँ से मैं इक्वेट करता हूँ फोर्स को तो आप लिख रहे थे kq1 अपॉन x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू kq कैपिटल लिखा बेटा मैंने नोटेशन, kq2 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। देखो k से k, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आएगा q1 अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू q2 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब q2 का मैग्नीट्यूड q1 से बड़ा हो। इट मींस स्टेटमेंट ये बनता है, if both charges having opposite nature then we have to place third charge particle on the line joining outside small charge in magnitude only। देखो आपने बोला कि सर ये तो q कंसीडर किया था, इसको -2q कंसीडर किया था, तो -2q we all know by mathematics -2q is smaller than +q, but here we have to consider magnitude only। So the statement is like this, if both charges having opposite polarity then we have to place third charge particle on the line joining outside small charge, on the line joining outside small charge, whereas in previous case if both charges having same nature then we have to place third charge particle on the line joining between them, on the line joining between them। बेटा बहुत बार एनसीईआरटी क्वेश्चन करता है कि आपको बोलेगा एक q है, दूसरा -3q है, आप कहाँ इक्विलिब्रियम रखोगे, कौन सा पॉसिबल है, तो आपको पता चल जाएगा एक q है -3q है, तो छोटा चार्ज कौन सा बेटा, q है मैग्नीट्यूड में, तो उसके आउटसाइड में आपको क्या करना है, सपोज करना है एक डिस्टेंस x पे, और आप x कैलकुलेट कर लोगे। आपको ये दोनों दिया है तो क्या वेरिएबल है आपके पास, x वेरिएबल है, तो आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा थोड़ा सा और मैं अनदर टाइप के एग्जांपल्स की बात करता हूं, तो बेटा यहाँ से आप थोड़ा सा एक्सेलरेशन और वो सब को लेके भी आप बात कर सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के लेके भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपने 11th में जितने भी टाइप के आपने क्वेश्चंस किए हैं आई थिंक सब टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं, मोशन को या काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को लेके, इक्विलिब्रियम को लेके भी होता है। अच्छा थोड़ा सा हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, जो टाइम पीरियड के लिए, तो प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम की बात करते थे, तो इक्विलिब्रियम बेटा आपका जो है, इक्विलिब्रियम जो बेटा आपने अगर 10th में पढ़ा हो, सॉरी 11th में आपने पढ़ा हो, तो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, ठीक है। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, इट मींस आपने जो अभी चेक किया कि आपने बोला कि सर दो चार्ज पार्टिकल्स q1 और q2 है और वो दोनों सेम नेचर के हैं, तो हमारे को कहीं r डिस्टेंस पे रखा, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल जो होगा q3 ऑन द लाइन joining between them it will be in equilibrium। but what kind of equilibrium it is? See there are 3 type of equilibrium possibilities, stable, unstable and neutral।
Okay, I do like to give you a little bit idea about stable, unstable and neutral. Suppose I'm going to draw a particular example. See, this one is a ball which is put according to like this. Suppose this is the position first, this one is position second, and this one is position third. See, how we should check the position of particle is in equilibrium, stable, unstable or neutral. So we have to displace a particle from its equilibrium. We have to displace any particle from its equilibrium position. If particle tends to recover its original position, then the type of equilibrium should be stable. Suppose ये बॉल जो था बेटा, मैंने इसको यहाँ रखा था, मैंने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया, तो ये वापस कहाँ आएगा? उसी पोजीशन पे आएगा. अगर मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो भी ये क्या आएगा? वापस इसी पोजीशन पे आएगा. तो ये कैसा पोजीशन बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम. कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है. सपोज करके यहाँ नेट फोर्स 0 है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा पार्शियली डिस्प्लेस किया तो ये कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा अपनी स्टेबल पोजीशन से. अच्छा, ये इसको डिस्प्लेस करता हूँ तो भी तो इफ पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इफ वी आर गोइंग टू शिफ्ट पार्शियली इट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपने किसी पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया और वो उस पोजीशन से दूर चला जाए तो वो कैसी इक्विलिब्रियम होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब आपने इक्विलिब्रियम से पार्शियली डिस्प्लेस किया और वापस पार्टिकल टेंडेंसी कर रहा है, वापस अपनी मीन पोजीशन को रिकवर करता है, तो वो टाइप का इक्विलिब्रियम जो होता है वो स्टेबल होता है. अच्छा, न्यूट्रल की बात करते हैं. अगर मान लो कि एक फ्लैट सरफेस पे आपने एक बॉल को रखा है, ये इसके लिए इक्विलिब्रियम है. अगर आपने इसको पार्शियली शिफ्ट कर दिया, यहां रख दिया, तो भी कोई टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ना तो ये दूर जाना चाह रहा है, ना इसकी टेंडेंसी वापस गेन करे. तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये न्यूट्रल है. कि आप जैसे मैं यहां हूं, आपने मुझे डिस्प्लेस किया तो मैं वापस यहां आया, इट मींस क्या हो गया कि मैं न्यूट्रल हूं. अगर मान लो ये मेरा पर्टिकुलर पोजीशन है और किसी बंदे ने मुझे पुश किया कि नहीं, यू शुड मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इफ आई रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, देन द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम शुड बी नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. और अनस्टेबल क्या हुआ कि किसी ने मुझे यहां से डिस्प्लेस किया यहां की इस पोजीशन के लिए और मैं मूव हो गया फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, देन दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल. ओके, ये आपने थोड़ा 11 में पढ़ा होगा, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल के बारे में. यहां हमें चेक करना है कि हम Q3 को जो था पुट करना चाह रहे थे ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम, तो ये इक्विलिब्रियम था. क्या था? इक्विलिब्रियम था. बट ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का है? स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है? तो वो हम चेक करते हैं. सपोज करके Q1 और Q2, let Q1, Q2 पॉजिटिव. ठीक, Q1 Q2 पॉजिटिव है और Q3 क्या है? पॉजिटिव है. Q3 ऑल्सो पॉजिटिव. अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये इक्विलिब्रियम तो था. अगर मैं इसको दो टाइप से डिस्प्लेस कर सकता हूं, ऑन द लाइन जॉइनिंग और परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग. सपोज करके Q1 Q3 पॉजिटिव था, Q1 और Q3 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव है और Q3 भी पॉजिटिव है. मैं इसको ऑन द लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करता हूं. सपोज यहां से मैंने इसको ऑन द लाइन जॉइनिंग इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो Q2 क्या बोलेगा बेटा? ये तो रिपेल करेगा, क्योंकि Q1 और Q3 जो है और Q2 है वो सेम नेचर है. तो इसको Q1 क्या करेगा? ये रिपेल करेगा. और Q2 क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा. मतलब इस पे इसका जो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल होता है ना, F of E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. अगर इसका डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा. मतलब मैंने इसको जैसे ही इधर डिस्प्लेस किया तो Q2 बोलेगा बोला पास ना बेटा, वापस जाएगा. तो ये क्या करेगा? SHM करेगा. मतलब ये कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना. If both charges having same nature and the third charge particle also having same nature, then on the line joining if we are going to displace, then it will be stable equilibrium. अगर सपोज कर यही Q3 मेरा नेगेटिव होता, सपोज कर यही Q3 क्या होता बेटा? नेगेटिव होता, तो Q2 क्या करता? उसको अट्रैक्ट करता. Q1 क्या करता? अट्रैक्ट करता. मतलब ये अट्रैक्शन, दोनों का अट्रैक्शन है. लेकिन अगर मैंने Q2 की डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो Q2 वाला फोर्स जो था वो कम हो जाएगा, जबकि Q1 वाला फोर्स बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसका डिस्टेंस कम होगा और इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है. तो डिस्टेंस किसका कम हुआ? Q2 का. और Q2 चाह रहा था, ठीक है. तो आपका Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है, तो देखो if both charges having same nature and the third charge particle Q also having same nature, then on the line joining
ऑन द लाइन जॉइनिंग इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं, एसएचएम करेगा तो एसएचएम का टाइम पीरियड बेटा दिया जाता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई k, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई k। m क्या बेटा मास है उस पार्टिकल का, k क्या है, तो k बेटा एक कांस्टेंट है, k फोर्स कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूं एसएचएम की, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो एसएचएम के लिए जो f दिया जाता है, आपका जो f होता है वो होता है माइनस kx। f जो होता है वो क्या होता है बेटा माइनस kx। इट मींस क्या है, f आपका फोर्स है, आपका पोजीशन है, तो k क्या है बेटा, यहाँ से फोर्स कांस्टेंट कोफिशिएंट है किसका, एसएचएम का, तो k का वैल्यू रखोगे तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई k। अगर आपने फोर्स आ गया, फोर्स जो आएगा ये आपको क्या इक्वेट करना है, f ऑफ e को, आपको जो मैग्नीट्यूड है उसको आपको किससे इक्वेट करना है, माइनस kx से, या kx से इक्वेट करोगे, f ऑफ e के मैग्नीट्यूड को kx से इक्वेट करोगे। x क्या है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन, कि आपने कितना उसको डिस्प्लेस किया, तो यहाँ से k का वैल्यू मिलेगा और आप वैल्यू पुट कर दोगे। बट आपके सिलेबस में इतना ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं आपसे, सिंपली आपसे पूछेगा कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कौन होगा, ऑन द लाइन जॉइनिंग होगा। अगर मान लो दोनों नेगेटिव है और तीसरा भी नेगेटिव है तो भी ऑन द लाइनिंग इक्विलिब्रियम होगा। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू डिस्प्लेस अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, सपोज करिए Q1 है और Q2 है और Q3 जो था यहाँ रखा है और मैं उसको अपर डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं। अगर मैंने यहाँ उसको डिस्प्लेस किया एक्स डायरेक्शन में, तो ये Q3 को Q1 क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, और ये Q2 भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स क्या जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू डिस्प्लेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, then the Q2 will repel Q3 and Q1 also repel Q3, so net force, so it will move away from its equilibrium position. So that type of equilibrium is known as unstable equilibrium. That type of equilibrium is known as unstable equilibrium. The next type of problem is which is based on Lamy theorem and all. See, what is Lamy theorem? What is Lamy theorem? बेसिकली अगर आपको वेक्टर में पढ़ाया होगा तो Lamy theorem के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं बेटा। Lamy theorem जो है बेटा वो बोलती है, इसके दो स्टेटमेंट है कि Lamy theorem के लिए दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन बोलता है कि a body should be in equilibrium and the total number of forces acting on a body should be 3। अगर सपोज करके आपकी कोई बॉडी है उस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, सपोज करके F1 लग रहा है और ये F2 फोर्स है और ये F3 फोर्स है, तो Lamy theorem क्या बोलता है, उसकी कंडीशन है कि टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी शुड बी इक्वल टू 3 एंड बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अगर ये 3 फोर्स है और 3 फोर्स के सपोज करके इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स θ1 θ2 θ3 है, θ1 θ2 सॉरी θ3 एंड θ2 है, तो Lamy theorem ये बोलता है कि F1 by sin θ1 should be equals to F2 by sin θ2 इक्वल्स टू F3 by sin θ3, है ना। ये आपको वेक्टर में पढ़ाया गया होगा। बेसिकली इसका यूज है, अगर आप चाहोगे तो इसको बहुत सिंपल वे में हम सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास F1 F2 F3 में से कोई एक वेरिएबल आपको पता है, दूसरा नहीं पता और थीटा पता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि साइन और साइन थीटा पता है तो साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएंगे। तो ये Lamy theorem है। अब हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, तो हम इसको अप्लाई करेंगे, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज 2 चार्ज पार्टिकल्स आर hanging on a string length L, Q1 and Q2 suppose. ओके, अगर मैं इन दोनों को फ्री करता हूं तो Q1 Q2 सेम नेचर के हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो कुछ ऐसा कंडीशन बन जाएगा बेटा। कुछ टाइम बाद मान लो कि इनका मास m है और ये Q1 है, ठीक है, चार्ज Q1 मास m, और ये भी चार्ज Q2 और मास m है, क्योंकि if both charges having same nature then they will repel to each other। कुछ टाइम बाद ऐसा पोजीशन हो जाएगा। अच्छा, ऐसा पोजीशन हो जाएगा तो बेटा आपको पता है कि mg तो नीचे लगेगा ना, m1 की वजह से m1g। अच्छा, इसी के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ कि इसका मास जो है वो नीचे है तो उसकी वजह से वेट लगेगा, वेट mg ड्यू टू एक्सर्टेड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। ओके, अब ये Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा तो F ऑफ E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इधर, है ना, F ऑफ E लगेगा, mg लग रहा, तो इसकी वजह से स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया कि Lamy theorem कब एप्लीकेबल है, जब उस ऑब्जेक्ट पे या उस बॉडी पे टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ ये mg है, ये F है और ये टेंशन है, तो तीनों ने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कंडीशन में कर रखा है। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर सपोज करिए ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करता हूं जूम आउट करके।
आपको कई बार पूछ लिया जाता है थीटा क्या होगा, मास बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, टेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सपोज कि ये आपका टी है, टेंशन मैंने यहाँ रखा mg और ये आपका हो जाएगा बेटा एफ ऑफ ई, है ना। अगर ये टी है, अगर मान लो इसका वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है या हॉरिजॉन्टल के साथ देगा तो कोई इट डजंट मैटर। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। तो t के दो कंपोनेंट्स होंगे बेटा, अगर मैं स्प्लिट करता हूं इसको कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, तो ये t है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा t cos 90 माइनस थीटा, t cos 90 माइनस थीटा एंड इट विल बिकम t sin थीटा, इट विल बिकम t sin थीटा। दिस वन विल बिकम t sin 90 माइनस थीटा, t sin 90 माइनस थीटा, दैट विल बिकम t cos थीटा। ठीक है, अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये बैलेंस कंडीशन में हो गया कि मेरे पास नीचे mg है, the upward direction force is t cos theta, the force which is acting on right side is t sin theta, and the force which is acting on left direction is f of e. Okay, so this is the balanced condition, and if we are going to equate horizontal forces as well as vertical forces, then we will get two equations, t cos theta equal to mg, t cos theta which is acting upward direction equal to the downward force mg in equilibrium position, and we know equilibrium it means net force acting on a body is zero. So by splitting t in vertical as well as horizontal direction, we will get the components of t like as t cos theta and t sin theta. So t cos theta should be equals to mg and f of e equals to t sin theta. So t sin theta is equal to f of e. सी अगर यहां से आपके पास दो चीजें पूछी जाती है, आपसे पूछा क्या जाता है जनरली, आपसे पूछा जाएगा या तो टेंशन बताओ स्ट्रिंग में कि टेंशन कितना हुआ, या आपसे पूछा जाएगा थीटा बताओ कि थीटा एंगल जो है आपका वर्टिकल से एंगल कितना होगा। तो आपको देखो यहां से अगर आपको टी निकालना है, यहां से आपको टी कैलकुलेट करना है, तो मैं स्क्वायर करूंगा इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करूंगा, तो बेटा मेरे यहां से बन जाएगा टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों को ऐड कर रहा हूं तो प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरा बन जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एंड वी नो बाय द आइडेंटिटी व्हिच वी हैड स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1, सो इट विल बिकम टी स्क्वायर, इट विल बिकम टी स्क्वायर इक्वल्स टू mg का होल स्क्वायर, इधर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना राइट हैंड साइड में, प्लस f ऑफ e का होल स्क्वायर। अगर मेरे को यहां से t इक्वेट करना पड़ेगा तो t क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस f ऑफ e का होल स्क्वायर। देखो यहां से आपके पास t आ जाएगा। अगर मेरे को थीटा कैलकुलेट करना हो, अगर मेरे को थीटा कैलकुलेट करना हो तो मैं लिखूंगा फॉर थीटा, फॉर थीटा। अगर मुझे एंगल कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 इट मींस t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा, t sin theta divided by t cos theta, we will get f of e divided by mg, f of e divided by mg। अच्छा t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा sin अपॉन cos बेटा होता है tan theta will be equals to f of e upon mg, and theta is tan inverse, theta is tan inverse f of e upon mg। सी मास आपको दिया होगा, आपको g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ व्हिच इज ऑलमोस्ट अराउंड 10, एंड f ऑफ e कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, f ऑफ e मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय a charged particle on another charged particle, which we will calculate by using Gauss law, which we will calculate by using Coulomb's law, similar to like gravitation using Gauss law. Okay, so for the calculation of f of e, see the calculation of f of e, for f of e, see suppose the length is L, the angle is theta, the angle is theta, the mass of particle is m, then downward force mg, f of e, and we know here f of e electrostatic force is action direction pair, so if q1 exert force on q2 is always similar in magnitude to force exerted on q2 by q1 also। okay, so L अगर आपका ये है तो बेटा आपको क्या करना है, f of e कैलकुलेट करना है। तो f of e के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास चार्ज पार्टिकल्स है, तो f of e आपका हो जाएगा बेटा, उसका मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो आप बोलोगे सर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, बट r क्या है बेटा, ये एक चार्ज पार्टिकल q1 है और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल q2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए,
कि आपका जो ये x1 और x2 जो है वो दोनों मिला के क्या बनेंगे, या ये आपके पास क्या बनेगा, r बनेगा। तो r का मतलब हो जाएगा बेटा यहाँ से r जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपका x1 प्लस x2 है। अच्छा r कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको x कैलकुलेट करना है। अच्छा x के कैलकुलेशन के लिए आपके पास ये अगर l है तो ये वाला कंपोनेंट l का, ये वाला कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो l ये कंपोनेंट है तो l का l cos 90 माइनस थीटा, इट मींस x1 जो हो जाएगा बेटा आपका l sin थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, l sin थीटा। तो आप L sin थीटा अगर सपोज करके Q1 Q2 का मास भी सेम होगा तो एंगल भी सेम होगा। सपोज करके Q2 का मास ज्यादा है तो Q2 का एंगल कम हो जाएगा। सिंपल से अगर मैं बात करता हूं बेटा, आपने ऐसे एक मास लिया जो आपने हैंग कर रखा अपने हैंड से, अगर इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दैट पर्टिकुलर मास देन एंगल वर्टिकल एंगल विल रिड्यूसेस। सो वही बात है कि आपका जो एफ ऑफ ई है वो सेम है, लेकिन अगर मास बढ़ता है तो एंगल क्या हो जाएगा, एम अगर बढ़ा रहा हूं मैं एम को तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा रिड्यूस होता है। ये रिसेंट ईयर्स में जेईई ने क्वेश्चन किया था, इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज मास देन टेंशन इंक्रीजेस, नो डाउट टेंशन इंक्रीजेस, एफ ऑफ ई डज नॉट मीन F of E, force of interaction between them also increases. Why increases? If theta decreases, then the central distance between both charges also decreases. So F of E also increases and the theta decreases. Okay, so many more type of problems are also over there which are based particularly logics that you had studied in 11th. तो आपने जो भी 11th में लॉजिक्स पढ़े हैं सबके सब मैं यहाँ किस में लगा सकता हूँ, कूलम्ब्स लॉ में लगा सकता हूँ। धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे। थैंक यू।